Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, we are discussing a very important chapter. And in this chapter, we have discussed about the habitats, we have discussed about the adaptation. Okay, and I hope you all have understood it clearly. Okay, and the homework which I have provided, I hope you all have done it. Children, now we are on to the another part, that is the last topic of this chapter, that the living things around us. Okay, so we'll go through it. We'll study the what are the characteristic of the living things, and what is the difference between the living and non-living things, and how you will distinguish between the living and non-living things. Okay, and it's an easy part, but you have to revise it thoroughly. You have to understand it clearly. Okay, the concepts given in this are very important. Okay, children. So, have you seen? Suppose, see, in the previous lectures, we have gone through the habitat, we have gone through the adaptation. Okay, lots of animal and plants we have seen they are in our surroundings. Suppose we stop a while and think which example in our list are living. We have done in activity 1, you have listed lots of objects such as the plants, animals which are found in your surroundings. So, suppose we stop a while and think that which examples in our list are living. Okay, just think the examples from a forest: trees, creepers, small and big animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, lots of things, dead animal, mushrooms, है ना? They may be only some of the objects that are present in the forest. Can you tell me which of these are living? Just think of the object that you can see around you at this moment. अपने आसपास आप नजर दौड़ाइए, देखिए, है ना? And group them in living and non-living, है ना? आपको पता है कुछ केसेस में it's very easy to know that this is a living and non-living. For example, the objects like chair or table in our homes, we know that they are what? Not alive. Okay? But you know this, just here one poem is given here by Edward Lear. When you read this poem, it is written here: set the table to the chair, you can hardly be aware how I suffer from the heat and from chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray, let us take the air, set the table to the chair. अगर इस टेबल को, इस पोएम को अगर आप पढ़ें तो आपको ऐसा लग रहा है कि टेबल चेयर से बात कर रही है, बट क्या दिस इज द रियलिटी? ऐसा नहीं है. चेयर तो बात नहीं करती है ना टेबल से. वो क्या है? वो तो नॉन लिविंग है ना बच्चों? सो अ चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन, वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव. सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव, एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर व्हाट? अलाइव, है ना? एंड वी ऑल्सो सी द एनिमल अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, जैसे डॉग हो गया, कैट, मंकी, स्क्वायरल, इंसेक्ट, मैनी अदर एनिमल्स, दे ऑल आर व्हाट? अलाइव. सो हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? कैसे हम जानते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है? कैसे? ऑफन बच्चों इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड, है ना? हमें बताया गया है कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन, है ना? हमें ये बताया गया ना, बचपन से हमने ये पढ़ा है और जाना है कि प्लांट जो है वो लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन वो डॉग और एनिमल्स की तरह क्यों नहीं मूव करते? जबकि दूसरी तरफ कार और बस मूव करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉन लिविंग. तो उनको नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? है ना? ये सोचने वाली बात है बच्चों. तो प्लांट्स और एनिमल दे अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम. प्लांट्स और एनिमल क्या करते हैं? वो साइज में ग्रो करते हैं, दे आर लिविंग है ना? लेकिन क्लाउड भी, जो आपके आसमान में जो क्लाउड्स होते हैं, वो भी तो साइज में ग्रो करते हैं, लेकिन उनको हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं. क्यों? सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे आज क्लियर करेंगे, है ना? सो कैसे, हाउ विल डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स? डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? यस दे हैव, है ना? और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना? So some of these characteristics are perhaps common to all the living things. Okay, the first thing is
डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड? क्या सारे लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए? बच्चों चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने देखा है कि लिविंग थिंग्स नीड फूड, है ना, एंड दे गेट द एनर्जी फ्रॉम देम, है ना, एंड यू नो दिस फूड इज वेरी एसेंशियल टू द एनिमल एंड टू अस ऑल्सो। हमने ये भी पढ़ा कि द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और आपको पता है जो एनिमल होते हैं दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एंड द फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो, है ना, और फूड से क्या मिलता है उन ऑर्गेनिजम्स को? एनर्जी मिलती है, जिससे वो क्या कर सकते हैं? ग्रो करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ऑल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस जो है आपके शरीर के बॉडी के अंदर होते हैं, उसके लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, है ना। डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? क्या सारी चीज़ें जो है वो ग्रोथ शो करती हैं, उनमें ग्रोथ होती है? आप अपने कपड़े देख लीजिए, है ना, जो कपड़े आप 4 साल पहले पहनते थे, क्या वो कपड़े इस समय आपको फिट होंगे? नहीं होंगे। क्यों? आप कहते हो कपड़े छोटे हो गए, कपड़े नहीं छोटे होते हैं बच्चे, है ना। घर में जनरली यही बोला जाता है ना कि अरे ये शर्ट मेरी छोटी हो गई, अरे ये मेरी पैंट छोटी हो गई है। पैंट शर्ट कभी छोटे नहीं होते, वो तो नॉन लिविंग है, वो तो साइज में ना छोटे होंगे ना बड़े होंगे, वो तो उतने ही बड़े रहते हैं, है ना। तो होता क्या है, हम लोग ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, हम लोग ग्रो करते हैं, है ना। जो 4 साल पहले आपको शर्ट होती थी या पैंट होती थी या स्कर्ट होती थी या टॉप होता था, वो आज नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि आप साइज में ग्रो कर गए हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, है ना। जो यंग वंस होते हैं एनिमल्स के, है ना, आपने देखा होगा इस तरह, देखो आप बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे एक छोटा सा बेबी था वो एक एडल्ट में ग्रो कर गया, है ना। पप्स हो गए डॉग्स के, चिकन्स हो गए, दे हैज फ्रॉम द एग एंड ग्रो इनटू हैन और अ कॉक। तो ग्रोथ तो शो करते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स शो व्हाट? ग्रोथ, है ना। इवन द प्लांट्स ऑल्सो ग्रो। आप छोटा सा पौधा लगाते हो, आप देखते हो साल 2 साल 3 साल बाद वो कितना बड़ा हो जाता है ना। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हमारे आसपास जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं, है ना। सो द ग्रोथ सिम्स टू बी कॉमन इन ऑल द लिविंग थिंग्स। तो ग्रोथ जो है वो क्या है? ये कॉमन है लिविंग थिंग्स में, इससे आप पहचान सकते हो, है ना। सो डू यू थिंक द नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट शो ग्रोथ? बताइए, क्या नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो नहीं कर सकते? बताइए, दिस इज द, आपको खुद सोचना है इसका आंसर क्या होगा, है ना। अब आते हैं रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग। क्या सारे के सारे लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? क्या आप 2 या 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बिना सांस लिए रह सकते हैं? 1 आध मिनट रह सकते हैं, आई होप 2 मिनट कुछ लोग रह सकते हैं, बट उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है ना, कि आप जो है बहुत ज़्यादा देर तक सांस रोक के आप बिना रेस्पायरेशन या बिना ब्रीथिंग के रह सकें। जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल का मतलब जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, जो एयर होती है वो हमारे बाहर से अंदर की तरफ जाती है बॉडी में, और जब हम ब्रीथ आउट, यानी जब हम बाहर करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो जो एयर है वो अंदर से बाहर की तरफ आती है ना। सो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस, या कह सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस रेस्पायरेशन, है ना। ब्रीथिंग क्या है? रेस्पायरेशन का एक पार्ट है। रेस्पायरेशन क्या होता है बच्चों? रेस्पायरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वी ब्रीथ इन द ऑक्सीजन, है ना, एंड दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड अप बाय आवर बॉडी। समझना ध्यान से, रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, वी ब्रीथ इन द ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड अप बाय द लिविंग बॉडी, एंड देन we breathe out the carbon dioxide produced in this process. So the process of breathing in animals like cows, buffaloes, dog, cat, they all are similar to humans. ये सारे के सारे humans की तरह हैं। तो भाई लिविंग जो थिंग्स होते हैं वो रेस्पायरेशन करते हैं, है ना, वो रेस्पायरेशन करते हैं। जब आप रेस्पायर करते हैं या जब ब्रीथिंग आप करते हैं तो आप देखिए, ठीक है, आपका चेस्ट जो है क्या होता है, साइज में पहले ग्रो करता है, फिर ठीक है स्मॉल हो जाता है ना। तो ये उसमें जब आप एयर भरते हैं, ठीक है, जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, तो आपका चेस्ट साइज़ बड़ा हो जाता है, और फिर जब आप एयर को रिलीज़ करते हैं तो वो फिर से सिकुड़ जाता है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन से होता है। जब आप रेस्पायरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें और जानेंगे इसके बारे में, है ना। तो रेस्पायरेशन बहुत नेसेसरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए,
है ना। अगर रेस्पिरेशन नहीं होता तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि बच्चों जो हम लोग फूड लेते हैं ना, वो फूड से एनर्जी कैसे मिलती है? वो फूड से एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू मिलती है, ठीक है। क्योंकि हमने फूड लिया और रेस्पिरेशन के थ्रू हमने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। ये ऑक्सीजन जा करके फूड का क्या करती है? ऑक्सीडेशन करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है, और उसको ब्रेक डाउन करके वहाँ से एनर्जी रिलीज करती है ना। तो रेस्पिरेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस, वी कैन से, है ना। रेस्पिरेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन वहाँ पे क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, ओके। बट ध्यान से सुनो जरा कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जस्ट ऑपोजिट है, सॉरी रेस्पिरेशन में जस्ट ऑपोजिट है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हम ऑक्सीजन क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ओके। तो सम ऑफ द एनिमल्स मे हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है भाई। हम अपने लंग्स के थ्रू, ठीक है, क्या करते हैं? रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग की जो भी प्रोसेस है वो करते हैं। लेकिन अलग अलग एनिमल्स में क्या होता है? ये मैकेनिज्म जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वो अलग अलग होता है। जैसे अर्थवर्म कैसे है? वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। जो फिशेज होते हैं उनके पास गिल्स होती हैं, है ना, क्योंकि वो जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है उसकी वजह से क्या करते हैं? वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, है ना। क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं? यस करते हैं बच्चों। जो एक्सचेंज होता है गैसेस का प्लांट्स में वो लीव्स के थ्रू होता है। और लीव्स में क्या पाए जाते हैं बच्चों? स्टोमेटा, पढ़ा है आपने? स्टोमेटा पाए जाते हैं और उसके थ्रू चीज़ों को हम क्या करते हैं? ये बच्चे एक्सचेंज करते हैं गैसेस। एंड द लीव्स टेक इन एयर थ्रू द टाइनी पोर्स इन दैम एंड यूज द ऑक्सीजन। क्योंकि जो लीव्स में क्या होते हैं बच्चों? बहुत स्टोमेटा पाए जाते हैं, है ना। और ये जो लीव्स में जो बच्चों आपके स्टोमेटा होते हैं ना, इसी स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस का। यानी ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? वहाँ पे रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्टोमेटा जो हम पढ़ा चुके हैं जिससे ट्रांसपायरेशन भी होता है, ठीक है, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं? जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। एंड दे गिव आउट व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, okay. Now we learned that the sunlight plants use carbon dioxide of air to produce their own food and give out the oxygen, ये पढ़ा है हमने। and the plants produce their food during the what? डे टाइम। ये ध्यान रखना, जो प्लांट्स होते हैं वो फूड को प्रोड्यूस कब करते हैं बच्चों? डे टाइम में, है ना। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? इन देम इट टेक्स प्लेस डे एंड नाइट, हमेशा होता रहता है। यानी फोटोसिंथेसिस आपका सिर्फ डे टाइम में होगा जब उसको सनलाइट मिलेगी, लेकिन रेस्पिरेशन आपका डे एंड नाइट कभी भी होता रहता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना। आपको पता है जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय द प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। हाँ बच्चों, एक ये भी डिफरेंस है ना। क्या कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, यानी जब हम फूड प्रिपरेशन होता है प्लांट्स में, यानी फोटोसिंथेसिस के में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लांट्स के द्वारा वो बहुत ज़्यादा होती है ना। किससे? द ऑक्सीजन रिलीज इन रेस्पिरेशन, ठीक है ना। सॉरी, दे यूज, नॉट रिलीज, दे एब्जॉर्ब। यानी फोटोसिंथेसिस में रिलीज होने वाली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज होने वाली ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ये मेरा कहने का मतलब, इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। मीन्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन द रेस्पिरेशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ओके। अब हम आते हैं, तो हमने क्या देखा? हमने देखा रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड ऑल द लिविंग थिंग्स नीड अ फूड, ठीक है। अब हम आते हैं कि डू ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, है ना बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो स्टिमुलाई के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप किसी हॉट आयरन पे, ठीक है, या आग में आपके हाथ चला जाए तो जल्दी से आप अपने हाथ को क्या कर लेते हो? हटा लेते हो वहाँ से, होता है कि नहीं होता है? या शार्प ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर आपको सडनली आपको क्या हो जाए,
चुभेगा तो आप तुरंत वहाँ से क्या हो जाते हो, अपने हाथ को अपने पैर को हटा लेते हो. सो डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, क्या होता है जब आप अपने फेवरेट फूड को देखते हो तो क्या होता है, मुंह में पानी आता है, होता है कि नहीं, सलाइवेशन होता है ना. तो क्या है बच्चों, ये सडनली होता है. या आप ऐसे भी देख सकते हो बच्चों, जब आप क्या करते हो, जब आप सडनली मूव करते हैं फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू द ब्राइट सनलाइट, क्या होता है, व्हाट हैपेंस. जब आप अंधेरे में काफ़ी देर रह जाओ और फिर एकदम अचानक से आप बहुत तेज़ धूप में बाहर निकलो तो क्या होता है, आपकी आंखें एकदम बंद सी हो जाती हैं, आपको आंखों में बहुत तेज़ लगता है, होता है कि नहीं होता है ना. योर आइज शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट, होता है ऐसे. और तब तक ऐसा होता है जब तक आपकी आंखें एडजस्ट ना कर लें उस सनलाइट को या उस ब्राइट सराउंडिंग को. सो आपका जो फेवरेट फूड है, ब्राइट लाइट है, थॉर्न है या नुकीली चीज़ें हैं, शार्प ऑब्जेक्ट है, इन जो भी सिचुएशन हमने डिस्कस की, दे आर सम एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग, है ना. ये आपके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एंड ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस. और हम सभी लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं इन चेंजेस का, करते हैं कि नहीं करते. अगर एक शार्प ऑब्जेक्ट आपको चुभ जाए तो आप तुरंत उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमें हाथ हटा लेना है या पैर हटा लेना है, होता है ना, है ना. आप डार्क से ब्राइट उसमें जाते हो तो आपकी आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं, तो वहाँ भी आप चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं. तो कहने का मतलब बच्चों ये है, ठीक है, कि हम सब लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली इन सब चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं. एंड द चेंजेस इन द सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई. ध्यान रखना, स्टिमुलाई क्या होता है या स्टिमुलस क्या होता है बच्चों, है ना. ये जो भी चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं या रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, स्टिमुलाई है. समझ में आ रहा है. तो बच्चों, डू अदर एनिमल ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, क्या और भी सारे जो एनिमल्स हैं वो भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं. जी हाँ, करते हैं. ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, है ना. जब उनको फूड सर्व किया जाता है आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो होता है तो नहीं, फूड को देख करके एकदम एक्टिव हो जाते हैं. तो फूड यहाँ पे क्या होगा, फूड एक स्टिमुलाई होगा, क्योंकि फूड की वजह से उनमें बिहेवियर में क्या हुआ, चेंजेस आए. तो फूड यहाँ क्या होगा, स्टिमुलाई होगा, है ना. when you move toward the birds, what does it do, जब आप एक बर्ड की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, वो रन कर जाते, उड़ जाती है वहाँ से. तो हम लोग क्या हुए, उसके लिए स्टिमुलाई हुए, है ना. या जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी दूर भाग जाते हैं, कब, जब एक ब्राइट लाइट उनके ऊपर फ्लैश की जाती है. सिमिलरली कॉकरोचेज, दे बिगिन टू मूव देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच ऑन एट द नाइट, होता है ना. आप जैसे रात में जैसे आप लाइट ऑन करते हो, जो कॉकरोचेज होते हैं वो तुरंत अपने जो अंधेरे की तरफ भागते हैं, तो लाइट उनके लिए क्या हुआ, स्टिमुलाई हुआ. समझ में आ रहा है आपको, स्टिमुलाई. तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको स्टिमुलाई समझ में. इवन प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू दिस स्टिमुलाई. आपने छुई मुई का पौधा देखा है, टच मी नॉट वाला, आप जैसे उसको टच करते हो तुरंत सिकुड़ जाता है, देखा है ना. तो प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उनके लिए क्या हुआ, स्टिमुलाई. टच क्या हुआ, टच एक स्टिमुलाई हुआ, है ना. टच मी नॉट, जिसको हम लोग मिमोसा प्यूडिका बोलते हैं साइंस में, जनरल भाषा में हिंदी में आप लोग छुई मुई बोलते हैं, है ना. शाई, बहुत ही शाई, लोग कहते हैं बहुत शाई होता है, ऐसे छूते हैं वैसे जो है वो तुरंत फोल्ड अप हो जाती है ना. सो ये सब एग्जांपल्स हैं बच्चों ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट टुवर्ड द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स. अब ये आप एक्टिविटी बच्चों कर सकते हो, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है. प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम द विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर सम टाइम ड्यूरिंग द डे. आप अपने विंडो के पास एक प्लांट रखिए, ठीक है, और वो प्लांट्स आप इस तरीके से रखिए, मतलब उस विंडो से धूप आपके घर में आती हो, ठीक है, और उस पॉटेड प्लांट को आप वहाँ पे क्या कर दीजिए, रख दीजिए. समझ में आ रहा है. धूप में नहीं रखना है, थोड़ा उससे दूर करके रखना है. कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज. आप कुछ दिन के लिए उस प्लांट को क्या करिए, कंटिन्यू वाटरिंग करिए. डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या आप देखेंगे प्लांट एकदम सीधा अपराइट एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, जैसे प्लांट बाहर रखे हुए तो उन्हीं की तरह. एंड नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स, और फिर आप उसकी डायरेक्शन को क्या करिए, है ना, नोट करिए, ठीक है, उसको नोटिस करिए कि क्या ऐसा हो रहा है. इफ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, डू यू थिंक दिस मे बी द रिस्पॉन्ड टू द सम स्टिमुलाई, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस अराउंड देम. तो ये बात सही भी है बच्चों, ठीक है ना, कि जब आप देखिए इस तरीके से, मतलब आपका जो विंडो होगा उसके पास
धूप में नहीं, वहाँ से धूप आ रही है एकदम डायरेक्टली धूप में नहीं रखना है आपको, थोड़ा उससे दूर रखना है हल्का सा, और उस प्लांट को आप रखिए और उसको पानी आप कंटिन्यूस दीजिए, ठीक है। और फिर देखिए कि एक आध हफ्ते बाद आप देखेंगे कि जो उसका जो ग्रोथ है ना प्लांट का, वो एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ नहीं होगा, वो थोड़ा सा जिधर से सनलाइट आ रही है ना उसकी तरफ वो मुड़ जाएगा। आप ये चीज़ देखेंगे, है ना। या एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जो प्लांट एकदम आपका अपराइट जा रहा है ना, छोटा सा प्लांट है, आपने ग्लास में, प्लास्टिक के ग्लास में या किसी छोटे से पॉट में अगर आपको किसी ने प्लांट लगा रखा है और एकदम सीधा आपने रखा, वो एकदम स्ट्रेट जा रहा है, उसको आप क्या करें, उसको बेंड कर दीजिए, ज़मीन पे लिटा दीजिए उस पॉट को, और उसको आप जो है क्या एक हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जो जिस पॉट को आपने बेंड कर दिया था ना, तो प्लांट जो है आपका बेंड हो गया था, एक हफ्ते के बाद क्या होगा, देखेंगे कि वो प्लांट जो है फिर से ऊपर सीधा ऊपर इरेक्ट हो गया, अब वो इधर नहीं जाके एकदम ऊपर जा रहा है। तो ये सब चेंजेस, ये सब स्टिमुलाई के थ्रू हो रहा है, ये आगे आप और हायर क्लासेस में बच्चे इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों आज मैंने सिर्फ लिविंग थिंग्स के 3-4 जो है कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं, जैसे रिस्पॉन्ड के प्रति स्टिमुलाई के लिए जो है क्या करना, रिस्पॉन्ड करना, स्टिमुलाई के लिए अगेंस्ट रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा, ग्रोथ के बारे में हमने आज पढ़ा, और फूड्स के बारे में पढ़ा, और उसके बारे में डिस्कशंस काफ़ी किए, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी और जो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कौन कौन से हैं, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सक्रीशन, है ना, इसके अलावा मूवमेंट, ये भी हम देखेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अभी कुछ पार्ट इसमें रह गया, एंड लाइफ, व्हाट देन इज लाइफ, लाइफ क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। आज आपको क्या करना है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताए वो कैरेक्टरिस्टिक आपको लर्न करना है, लिखना है, और साथ में ही आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये आप आज का क्या है बच्चों, आपका होमवर्क है, इसके बारे में आपको एटलीस्ट लिखना है कि आप कितने मैक्सिमम पॉइंट्स लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों ने नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।